तैयार हो? Acts 10:15. प्रेरितों के काम 10 उसका 15। You know, Peter was fasting and a voice came from heaven. पतरस उपवास कर रहा था और एक आवाज आई स्वर्ग से। And the same voice is coming from heaven to you today. और वही आवाज आज तुम्हारे पास आ रही है। The voice spoke to him a second time, do not call anything impure that God has made clean. कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहरा दिया है उसको तू अशुद्ध मत बोल। How are you purified? आप कैसे शुद्ध हुए? कैसे? By the blood. लहू की वजह से। Then God says, how dare you call yourself unclean when I have cleaned you with my blood? तो परमेश्वर कहता है तेरी हिम्मत कैसे ही अपने आप को अशुद्ध अपवित्र कहने की, जब मैंने तुझे शुद्ध किया, मैंने तुझे पवित्र कर दिया। Say, I am purified by the blood of Jesus. बोलो यीशु के लहू ने मुझे शुद्ध कर दिया। You shall not call unclean what the Lord has cleaned or purified. तू उसको अपवित्र मत बोल जिसको प्रभु ने पवित्र कर दिया है। Even for yourself. अपने आप के लिए भी। Because now even your body is not yours. क्योंकि अब आपका शरीर भी आपका नहीं है। The Bible says you were purchased with a price. बाइबल कहती है तुम एक दाम देकर खरीद लिए गए हो। Hallelujah. I think there has to be a lot of preaching about the blood of Jesus. मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्रचार की आवश्यकता है यीशु के लहू के बारे में। Because usually what the blood has been used is just as a weapon against devil, but not as something that purifies you. क्योंकि अधिकतर समय लहू का इस्तेमाल शैतान के खिलाफ एक हथियार की तरह हुआ है, लेकिन आपको पवित्र ठहराने वाले की तरह नहीं। So this is the good news. ये अच्छी खबर है। This is the gospel. ये सुसमाचार है that the blood has purified कि you. लहू ने आपको पवित्र बना दिया है। Come on, tell your neighbor. अपने पड़ोसी Say, neighbor, this is the good news. बोलो पड़ोसी ये अच्छी You खबर are है। purified by the blood. तुम लहू के द्वारा पवित्र हो चुके हो। Hallelujah. You are purified by the तुम blood. लहू के द्वारा पवित्र हो चुके हो। The blood of Jesus has washed you and cleansed you. यीशु के लहू ने आपको पवित्र कर दिया, धो दिया, निर्दोष कर दिया। Amen. Now, as you establish and grow strong in this revelation, जब आप इस प्रकाशन में स्थापित होते हो, मजबूत होते चले जाते हो, sin consciousness will start to lose its grip on you. पाप की ओर केंद्रित मानसिकता आप में से टूटने लगेगी, आप उससे आजाद हो जाएंगे। Amen. Hallelujah. Glory. Thank you, Lord Jesus. So, blood deals with your sins. लहू आपके पापों के लिए समाधान करता है, But the cross deals with your sin nature. लेकिन क्रूस आपके पाप के व्यक्तित्व का समाधान कर देता है। You know why? पता है क्यों? Because the only thing that can set you free from the sin nature is death. क्योंकि एक ही चीज है जो आपको पाप के व्यक्तित्व से आजाद कर सकती है, वो है मौत, मृत्यु। I want to tell you, whatever your problem is, मैं आपको बताता हूँ, जो कोई भी आपकी समस्या है, death will surely cure it. मृत्यु पक्का उसका समाधान कर देती है। You didn't get it. समझे नहीं आप? Death cures all your problems. मृत्यु आपकी सारी परेशानियों का समाधान If करती है। anybody had, let's say, a debt of 10 crores, he dies, taken care of. अगर किसी पे 10 करोड़ का कर्जा होता, उसकी मृत्यु हो गई, मामला खत्म। Death takes care of all your problems. मृत्यु आपकी सारी समस्याओं का समाधान है। So now, अब you can either wait for your own death or you can look to his death. अब या तो आप अपनी मृत्यु का इंतजार करते रहो या फिर आप उसकी मृत्यु की ओर नजर कर लो। Hallelujah. Because Jesus didn't die for himself, Jesus died for you and for me. क्योंकि यीशु अपने लिए नहीं मरा, वो आपके और मेरे लिए मर गया। The Bible says, because Jesus died, God reckoned as everyone died. परमेश्वर का
वचन कहता है क्योंकि यीशु मर गया, परमेश्वर की नजर में हर कोई मर गया। Glory. The problem is, on the cross you just see Jesus alone. That's the problem. समस्या ये है कि आपको क्रूस पर यीशु अकेले नजर आते हैं। पास्टर जी, मुझे एंजाइटी होती है। Oh, I have anxiety. Death will deal with that anxiety. मृत्यु ठीक कर देगी उस एंजाइटी को। I have this fear. मुझे डर है। Death will deal with that fear. मृत्यु वो डर दूर कर देगा। हर एक टिश्यू, हर एक नस, हर एक हड्डी इस समय सैचुरेट हो जाए पवित्र आत्मा के अभिषेक से। आपका एक एक सेल, आपके शरीर का एक एक अंग, हर एक मांसपेशी इस समय परमेश्वर के अभिषेक से सैचुरेट हो जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ यहाँ पर मौजूद है। पवित्र आत्मा का अभिषेक यहाँ पर मौजूद है। वो बहुत सारे लोगों को इस समय